Hello students, I am Monica Soul from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing our English grammar topic determiners. Yes, let's understand what are determiners. Look at the phrases given below. The best girl, my sister, every child, that ball, some people, our home. Now the words the, that, my, some, every, are the determiners. Determiners are words which identify or specify a noun in some way. क्या करते हैं ये नाउन को स्पेसिफाई करते हैं. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स वी विल लर्न टुडे. लेट्स सी articles. You all already have learned articles that are a and the. Cardinals means 1, 2, 3 etc. These are the numbers cardinal. Ordinal means the first, second, next. These are called ordinal, last etc. Now demonstratives when we point out to something, this, that, these, those. Possessives when we tell my, our, your, his, her etc. These are the possessive nouns. Here interrogatives, what, which, whose etc. These are the interrogative determiners. Possessive determiners, then interrogative. Now quantifiers. Now what are quantifiers? They are telling you the quantity of something, like some, any, much, many, several. Distributives means when you are among the 2 or 3 persons, when you are giving the distributing, आप जब बांटते हैं किसी चीज़ को, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं. जैसे ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये वाले डिटर्मिनर्स वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ आर्टिकल्स. व्हाट आर आर्टिकल्स? An article is a place before a noun. Article is placed before a noun. Noun के पहले ये लगता है. If there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. अगर noun के पहले adjective है तो article आपका कहाँ लग जाएगा? Adjective के पहले लग जाएगा. There are 3 articles in English: a, and, the. A or an is indefinite articles because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. Now these are the indefinite articles. What are they? A and an. A person, that is any person. अपन जब बोलते हैं ना ए पर्सन, तो इसका मतलब कोई भी, किसी भी के बारे में बात हो रही हो तब हम ए यूज़ करते हैं. नाउ वेर इज द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. द डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि वो डेफिनेट किसी चीज़ के आगे लगता है. डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली पॉइंट्स आउट टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एज देर इज ओनली वन सन इन द यूनिवर्स. एक ही सन है ना यूनिवर्स में, अपन पर्टिकुलर उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं. कौन सा? एक, द सन. तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा है? ये पर्टिकुलर एक ही है पूरे वर्ल्ड में, कहीं और दूसरा सन थोड़ी ना है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग द ओवर हियर. नाउ ए और एन. द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड. कोई भी कंसोनेंट साउंड के पहले अपन आर्टिकल ए लगाते हैं. दिस यू हैव लर्न राइट फ्रॉम द क्लास 5th 6th क्लासेस. काउंटेबल नाउन्स के आगे भी अ लगता है. अ बुक, अ वन पेरेंट फैमिली, अ हाउस, अ यूनिक प्लेटफॉर्म. नाउ ये आप बोलोगे यू तो नहीं है कंसोनेंट, बट द साउंड इज कमिंग वाई. यूनिक बोल रहे हैं अपन इसको, इसीलिए अपन ने यहाँ पर ए लगाया है. यहाँ पर अ वन पेरेंट फैमिली, क्योंकि ये वन का जो साउंड आ रहा है वो डब्ल्यू से आ रहा है. दैट इज वाई वी आर पुटिंग ए ओवर हियर. The article an is used before a countable noun in the singular number beginning with a vowel sound. A vowel sound जैसे ही आता है, जैसे umbrella, this is the vowel sound, तो हमने n लगाया, an. A tree, an orange, again the sound is coming o, so that is where they are telling you the vowel sound is coming. That is why we are putting an. Now the is the definite article. It is used before a noun whenever we want to make it particular. कुछ भी कभी भी पर्टिकुलर बताना हो ना तब अपन द लगाते हैं. द बुक दैट आई रेड. अब ये पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है. बुक्स और वो जो थी अ बुक और होता तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, बट वो बात कर रहा है एक पर्टिकुलर बुक की जो उसने पढ़ी है. तो दैट इज वाई ही इज पुटिंग द ओवर हियर. द बुक दैट आई रेड. द इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स दैट आर यूज्ड इन अ सिंगुलर टू पॉइंट थिंग्स पर्टिकुलरली. शी प्लेड द पियानो सो वेल. नाउ हियर अगेन काउंटेबल नाउन हियर, और अपन किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करें या थिंग को पॉइंट आउट करें तब यूज होता है. शी प्लेड द पियानो.
उसने ऐसे बोला है द इज यूज्ड बिफोर एनी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले भी द यूज होता है, जैसे द बॉल वॉज थ्रोन इनटू द रिवर, नाउ बॉल इज अ कॉमन नाउन. We use the to refer to something that is only one of its kind when there is something unique. अब कोई यूनिक चीज़ है जिसको अपन दोबारा वो रिपीट नहीं हो रही है या है ही नहीं, तब अपन द यूज़ करते हैं. द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ. अब ये मून ही रिवॉल्व करेगा द अर्थ के आगे ना, दैट इज वाई इट्स पर्टिकुलर, इन्हीं के साथ ये चीज़ होती है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द. वी यूज द विथ अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. Now see how, like I have told over here, I bought a mobile phone. The mobile phone camera is of high resolution. अब ये मोबाइल फ़ोन दोबारा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई वी आर नेक्स्ट टाइम वी आर यूजिंग द ओवर हियर, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस मोबाइल फ़ोन की ही बात हो रही है. देन द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले भी द यूज होता है. द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा. इसकी जैसी कोई और बिल्डिंग नहीं है, नो कंपैरिजन ना, सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द ओवर हियर. वी यूज द टू रेफर टू द पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा. द गंगा, द सहारा डेजर्ट, द ताज होटल, द हिमालयाज. पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है ना, उसी के आगे द लग रहा है. द इज ऑल्सो यूज विथ द पर्टिकुलर बुक नेम्स, नेम ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ कंट्रीज एंड टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली नेम एक्सेट्रा. जैसे हम द इंग्लिश बुक, अब हम पर्टिकुलर इंग्लिश बुक की बात कर रहे हैं ना, हम बुक्स नहीं बोल रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बुक, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द ओवर हियर. द राजधानी एक्सप्रेस, दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेन विच इज द सिंगल राजधानी एक्सप्रेस, और कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं है. देन द जैन्स, द जैन्स मतलब वो पर्टिकुलर जैन फैमिली जो उनके पास रहती होगी, उनकी बात हो रही है, दैट इज वाई दे आर यूजिंग ओवर हियर द जैन्स. देन द हिंदुस्तान टाइम्स, अगेन दिस इज द न्यूज पेपर, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज पेपर, सो वी आर using the over here. We use the with adjectives when those adjectives are used as a noun such as rich, poor, blind, lucky, unlucky, etc. इस टाइम पे भी हम द यूज करते हैं. ये एडजेक्टिव्स हैं, द एडजेक्टिव विच आर यूज्ड एज अ नाउन, नाउन की तरह जब एडजेक्टिव्स को यूज करा जाए, देन वी हैव टू पुट द इन फ्रंट ऑफ देम. इट इज डिफिकल्ट फॉर द ब्लाइंड, द डेफ टू एक्वायर द स्किल ऑफ कॉन्वर्सेशन. देखो ये पर्टिकुलर उनके बारे में बात हो रही है ना, ब्लाइंड और डेफ, इसलिए उन्होंने आगे उसके द लगाया है. द इज यूज बिफोर डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम और विच टाइम एक्सप्रेशंस. नाउ they first met on the 9th of December. Now ये क्या बता रहे हैं, किसी कोई एक्सप्रेशंस ये बता रहे हैं, दिस इज यूज बिफोर द डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डेट बता रहे हैं ना, दैट इज वाई दे आर यूजिंग द ओवर हियर. वी यूज द विथ फ्रेजेस दैट इमीडिएटली सिंगल आउट स्पेसिफाई अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. द लास्ट सेंटेंस, अब हमको स्पेसिफाई करना है, जैसे व्हेन वी आर गिविंग यू समथिंग टू राइट, तो वी आर टेलिंग यू ना कि द लास्ट सेंटेंस यू हैव टू रीड द लास्ट सेंटेंस, दैट इज वाई वी आर यूजिंग द, मतलब वो वाला ही सेंटेंस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको द लास्ट सेंटेंस पढ़ना है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस वे. देन द ओनली गर्ल इन द क्लास, अब हम पर्टिकुलर एक गर्ल जो कुछ भी, या तो वो नॉटी होगी या फिर वो काम नहीं करके लाती होगी, तो हम उसको पॉइंट आउट करना है, द हम बोलेंगे द गर्ल इन द क्लास हु इज नॉट डूइंग वर्क और एनीथिंग, तब हम द लगाते हैं. द फर्स्ट मीट अप, the blue pen, particular pen we are talking about. We use the to refer to body parts or the things we use regularly. Switch off the lights when not in use. Now again here we are talking about a particular things. Lights के लिए बोल रहे हैं कि वो वाली जो lights हैं, put them off, switch them off. We also use the before a noun which is followed by off. जब off लगता है तब भी हम ये the को लगाते हैं, जैसे the destruction of Amazon forest will lead to harmful effects in future. अब यहाँ पर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर Amazon forest के बारे में बात कर रहे हैं, that is why we are talking about that destruction of the destruction of the Amazon forest. of the Amazon नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया हमने, the destruction of Amazon forest will lead to harmful effects in future. Now comes the demonstrative determiners. Now what are demonstrative determiners? Demonstrative means अपन किसी चीज को particularly point करते हैं, that time we are using these these determiners like this, that, these and those are demonstrative adjectives. They are used before a noun that points to definite object, like this and that are used with singular nouns, whereas these and those are used with plural nouns.
Now this and that are used to refer to nearby object, whereas these and those are used to indicate the distance object. Even this you have learned in the smaller classes. Now here this book is mine, मतलब यहाँ जो अपने पास रखी है उसके लिए हम बोलते हैं like this is mine, ना ये मेरे पास है. And when I am pointing out to something far away, then I will tell that. So that is way. These books are ours. Now these क्यों? क्योंकि हमने इसको plural में लगाया है. As books है, we are talking about many books. So we are using these. I like this boy. Now this एक लड़के की बात हो रही है. So this boy. That book is yours. That मतलब वो दूर रखी है book. That is why we are pointing out and telling that book is yours. Then those books are yours. I do not like that boy. Particular we are pointing out to the boy who is sitting far away, and we are talking about that boy. Now possessive determiners. Possessive का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, तो वो possessive होता है. Possessive determiners. My, our, your, his, her, its, their, one's are a possessive case of pronouns. These are used with singular nouns and plural nouns to show the connection with them, like my mother, her looks, one's responsibility, our child, their house, its small. Now these are all the possessive noun. मतलब हम particular person के बारे में बता रहे हैं कि ये उसका है, ये मेरा है. अपन बताते हैं ना ये हमारा है, तो वो सारी चीज़ें possessive determiners में आती हैं. Then comes the cardinal determiners. ना cardinal determiners अपने को नंबर बताता है 1, 2, 3 ये. Cardinals are counting numbers 1, 2, 3, hundreds etc. used before a noun. They are adjectives that describe the quantity of a noun. They are 1 kilo oranges on the table. Now they are describing the क्वांटिटी ना कितने हैं, एक हैं, दो हैं, चार हैं या किलो है, तो वो बता रहे हैं. ऑर्डिनल में व्हेन वी आर टेलिंग फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, दीज कम इन ऑर्डिनल्स. Ordinals determine. Ordinals are the numbers used before a noun to indicate order, rank or position. First, fourth, 100th, etc. All ordinals carry a suffix and d. आर डी एस टी और टी एच, ये हमेशा सफिक्स लगता ही है ऑर्डिनल नंबर के साथ. द फर्स्ट 3 इनिंग्स वर क्वाइट डल. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द इनिंग्स, जो मैच खेल रहे थे तो उसे जो पहली जो इनिंग्स हुई उसके बारे में बात हो रही है, एंड इट्स यूज द ऑर्डिनल नंबर. शिवा वन सेकेंड प्राइज इन रनिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन दिस स्कूल. नाउ हम यहाँ पर ये थोड़ी बोलेंगे शिवा वन 2 प्राइज, नहीं. सेकेंड प्राइज मतलब दूसरी जो हम बोलते हैं वो, उसको जब यूज होता है तो वो ऑर्डिनल नंबर्स में बोला जाता है, फर्स्ट, सेकेंड. नाउ इन द डेट एक्चुअली व्हेन वी प्रोनाउंस एवरीवन सेज इट इन द रॉन्ग वे. 21 नहीं बोली जाती, डेट हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स में बोली जाती है. 21st, 22nd ऐसे बोला जाता है. नाउ क्वांटिफायर्स. व्हाट आर क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स मीन्स दे आर टेलिंग यू द क्वांटिटी, है ना. अपन को जब पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता है कि कितनी है, तो वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स. क्वांटिफायर टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैनी, सेवरल, मच, अ लिटिल, सम, एनी एक्सेट्रा. Many and several are used to suggest numbers. They are used with countable nouns. Many और several countable nouns के, जैसे several books मतलब बहुत सारी बुक्स रखी है, वो countable है ना, हम काउंट कर सकते हैं. पर हम अंदाजे से जैसे बोलते हैं हमने काउंट नहीं करी, तो हम यही बोलेंगे ना कि several books are kept over there. Many trees. Now many trees we have not counted. We can count the trees but we have not counted, so we will use many trees. I saw many trees. हम थोड़ी बोलेंगे कि we saw 100 trees. अगर काउंट करा होगा तभी बोलोगे. But when you are not counting it, we are writing it many. Much and a little indicate quantity. They are used with uncountable nouns. अब ये तो uncountable noun के हिसाब से होते हैं because we can't count these things. A little boy. अब a little boy, boy काउंट होता है, बट a little boy छोटा सा बच्चा. तो हम we are talking about the quantity. How much water? Now how much water? We can't count it. 1, 2, 3 water नहीं. We have to say how much water. Some and any can be used with both countable and uncountable nouns. They are used to refer to both quantity and number. Also they are used in affirmative sentences and they can be used in interrogative sentences. Just some, please, I need some books to read. Any news? Do you need any help? Now these way they are used. Any is mostly used in interrogative sentences, and here affirmative sentences we are using some over here.
नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव्स, नाउ व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव्स? डिस्ट्रीब्यूटिव्स मतलब जब हम चीज़ों को बांटते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ईच, हम बांटते हैं या हम बोलते हैं कि ईच वन ऑफ यू प्लीज कम हियर। तो वी आर नॉट काउंटिंग एंड टेलिंग, वी आर जस्ट टेलिंग कि सब बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ। दैट टाइम वी आर यूजिंग दीज। नाउ ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट पेयर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, मतलब या तो तुम या तो तुम आओ यहाँ पर, जब हम बोलते हैं तब वी आर यूजिंग दिस। ईदर पेपर कैन सर्व माई पर्पस इक्वली वेल। अब जैसे अपन इन दोनों में से दो पेपर आपको दे दिए तो अपन को क्या बोलते हैं कि इन दोनों में से कोई भी, मैं कोई भी रीड करूंगी तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब हम यूज करते थे। नीदर इज यूज्ड, इट इज अपोजिट ऑफ ईदर। अपोजिट का अपोजिट है ना ईदर का, नीदर। इट मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर, ही इज नीदर टॉल नॉट शॉर्ट। अब इसमें अपन जब अपोजिट होते हैं तो अपन कंपैरिजन करते हैं कि ये ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, जब उस टाइम पे वी आर यूजिंग दिस नीदर। ईच एंड एवरी, वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ things separately one by one, whereas we use every when we think of things as a group। every मतलब हम ग्रुप में जब बात करते हैं, और each मतलब हम पर्टिकुलर सब के लिए एक एक करके डिफरेंटली हम लोग उनको डिफरेंशिएट करके हम बताते हैं जब किसी बारे में, तब each यूज होता है। लाइक when we think of things as group, we use each for a small number, for definite number, and every is used when the number is large or indefinite। बहुत बड़ा crowd है तो हम every बोलेंगे, हम each नहीं बोलेंगे वहाँ पर। like every person deserves love and respect। देखो हर सब पर्सन जो भी वहाँ पर मौजूद है सबके लिए ये बात हो रही है। यर ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल। अब ये पर्टिकुलर साइड्स के बारे में, ईच साइड्स की बात हो रही है और पर्टिकुलर्स की बात हो रही है। उसमें हम लोग जब डेफिनेट नंबर नहीं है तब हमने क्या यूज़ करा, स्मॉल नंबर के लिए तो हम ईच यूज़ करें, और डेफिनेट नंबर हम लोग एवरी यूज़ करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए। नाउ इंटरोगेटिव्स, interrogatives, determinants that help to ask questions may be described as interrogatives। what, which, whose, how much and how many are interrogatives। this you already know that interrogatives और determinants में भी यही सारे यूज होते हैं, जैसे which, whose, how much, how many। which book, how many boys, whose pen, which class। so these are the interrogative, and all these are the determiners which we have learned today, and I'll be giving you the exercise which will follow this, and you have to solve this। please read the rules properly and then solve the exercise। thank you।